हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और कल जो हमने रिवीजन लिया था चैप्टर नंबर 2 का, वो आप सबने कर लिया होगा, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू आर डन विद द लर्निंग ऑफ चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स. We have completed chapter number 2. We have completed people as a resource, right? Now today we are going to discuss the question and answers of this chapter so that you can go with the chapter in a proper way. Have a look. Question number 1 is, what do you understand by people as a resource? जब हम people as a resource की बात करते हैं, then why we are indicating human beings as a resource? Why we call people as a resource? उसको हमें अच्छे से पढ़ना. So have a look what is written over here for you. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and technology to do so. That is why human beings are considered as a resource. ये कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर and they are the persons who can create more and more resources when they are having knowledge, skills, and technology, right? That's why we consider human being as human resource, because they are further resource creators. They are the persons who convert the physical material into valuable resource. They are the persons who are responsible for converting wood into furniture, right? A human being is responsible for converting wood into furniture. A human being is responsible for converting paper into book. A human being is responsible for converting various raw materials into various important things which are being used by us, right? We don't directly use thread, we use cloth. So the person who is converting thread into clothes is also a human being. So human resources are required for conversion of physical resources into useful resources. अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं. People as a resource is a way of referring to countries, working people in terms of their existing productive skills and ability. People as a resource सिर्फ वो people resource है जो इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं. हमने बात की थी, right? Only such population which is engaged in some working, which is engaged in conversion of raw materials into productive commodities. Now have a look. The idea of people as a resource is linked to the concept of human capital, that is the stock of skills and productive knowledge embedded in a population. पॉपुलेशन में जो स्किल्स है, उनमें जो नॉलेज है, वो नॉलेज ह्यूमन कैपिटल है. और ह्यूमन कैपिटल की वजह से ही ह्यूमन बीइंग क्या बन चुके हैं? रिसोर्स बन चुके हैं. आगे देखिए. एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. We all know it. 4 factors of production: land, labor, capital, and physical capital and human capital. Land, labor, physical capital, and human capital. Without it, काम नहीं होगा. So the knowledge and enterprise provided by human capital put together the other 3 factors to produce an output. Population becomes an asset instead of liability when investments are made in the form of education, training, and medical care. Simple सी बात है ना. Why do we call people as a resource? Because such people is having some skills, okay, and they are having capacities to use their skills and to increase to the productive capacity of our economy. आगे देखिए. Next question. Very simple. How is human resource different from other resources like land and physical capital? बहुत बड़ा डिफरेंस है. लिविंग है ह्यूमन रिसोर्स, लैंड और फिजिकल कैपिटल तो नॉन लिविंग असेट्स है. तो देखिए क्या कह रहे हैं. Human resource make use of other resources like land and physical capital to produce an output. Human resource is the resource which is using the other resources to produce some output. The other resources cannot become useful on their own. This is the reason why human resource is considered to be superior than the other resources. ये कह रहे हैं बाकी के रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज ही रह जाएंगे, कैपिटल बन ही नहीं पाएंगे अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, right? So you need human being in order to use the other resources. So human resource is very different and very significant as compared to land and other physical resources. Now role of education in human capital formation. है क्या एजुकेशन का कोई रोल? कल हमने बात की थी क्या कि मम्मी हमारी पढ़ाई पे और हमारे खाने पे ज्यादा फोकस करते हैं. क्यों? क्योंकि ये दो वो चीजें हैं जो हमें फर्दर ग्रो करने में हेल्प करेगी. So here we have to read, we have to discuss the role of education. Have a look क्या लिखा हुआ है. Human capital refers to the stock of skill and productive knowledge embedded in population. Skills और productive knowledge जो किसी individual में है.
आगे देखो आपको क्या कह रहे हैं। Proper education and training enable the formation of this human capital. ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आगे, an educated population is an asset, a resource. On contrast to the uneducated and untrained, educated individual make efficient use of available resources and opportunity. ये कह रहे हैं जो एजुकेटेड इंडिविजुअल है वो तो आपकी कंट्री के लिए असेट है, वो तो आपके लिए रिसोर्सेज है, वो तो आपकी फर्दर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन अनएजुकेटेड पीपल आपके लिए लायबिलिटी है, वो आपको कोई भी तरीके से बेनिफिट नहीं देके जाएंगे, है ना। एजुकेटेड लोग अपॉर्चुनिटीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, तो इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये आपको मेंशन करके दे रहे हैं दैट education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. एजुकेशन और स्किल ही आपकी अर्निंग को डिटरमाइन करेंगे। एजुकेशन एनहांसेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी व्हिच इन टर्न एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एजुकेशन हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करेगा, जिससे हम इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। Now, aware of benefits of education, educated person helps in its perpetuation. यानी जो एजुकेटेड है उनको पता है एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, तो वो फर्दर एजुकेशन को और मल्टीप्लाई करते हैं, वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को, उसकी सिग्निफिकेंस को रियलाइज करते हैं और हेल्प करते हैं फर्दर पॉपुलेशन को एजुकेटेड होने के लिए। एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे तो वो जरूर अपने बच्चों को भी एजुकेशन करवाएंगे, ठीक है, वो उनको भी एजुकेटेड बनाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए है परपेचुएशन, यानी कि कंटिन्यूएशन, ठीक है। परपेचुएशन का मतलब है कंटिन्यूटी, एजुकेशन को कंटिन्यू करवाते हैं ऐसे लोग इकोनॉमी में। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेटेड पॉपुलेशन स्प्रेड टू इवन दोज हु देमसेल्व्स आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन के बेनिफिट तो उनको भी मिलेंगे ना जो एजुकेटेड नहीं है। एक डॉक्टर एजुकेटेड है तो वो अनएजुकेटेड का भी तो ट्रीटमेंट करेगा, तो उनको भी बेनिफिट मिलेंगे। आगे, hence educated people benefit the society as a whole, thus it plays an important role of catalyst in transforming a human being into a positive asset and precious national resource। आपको अगर पूछ ले which facility transforms human being into human resource and human asset, तो आपका आंसर होगा एजुकेशन। वैसे तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही इंप्रूव करते हैं, बट एजुकेशन का रोल सिग्निफिकेंट है, दोनों का, एजुकेशन और हेल्थ का दोनों का अपना अपना रोल सिग्निफिकेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हेल्थ का पूछ रहे हैं, हाउ हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ। तो देखिए ये भी बहुत इजी सा है, पढ़ के देखिए क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है। गिव इट अ ट्राई, फर्स्टली रीड इट प्रॉपर्ली एंड देन रेज योर हैंड इफ यू आर केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग। Anyone else? Anyone other than these students? Only these students are capable of explaining, और कोई नहीं कोशिश करेगा। चलिए ओके आर्यन। यस बेटा। मैम फोर्थ क्वेश्चन ओनली ना? यस फोर्थ क्वेश्चन। Ma'am, the health of human capital is very important because when an human is healthy, he can work more efficiently, Very and good. his skills can give more productivity to the country Yes, and the very good, economy. Aryan. Perfect one, perfect. Yes, Lakshita, anything other than this? Very good morning. Yes, ma'am. The answer is, ma'am, that, ma'am, the role of health in human capital formation is so important, and ma'am, education also. But in this question, we only talk about health only. So let's start. And health is a very important resource for an life and for an formation of human capital.
how that I'm telling you that हेल्थ अगर सब हेल्दी रहेंगे तो वो जो ह्यूमन कैपिटल है, अगर वो सारी हेल्दी रहेगी तो वो अपने नॉलेज और स्किल से वो कुछ मतलब एक आउटपुट निकाल पाएगी अपने 3 फैक्टर के साथ। अगर वो अनहेल्दी होगी तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए हेल्थ भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में, इसलिए। बिल्कुल, very good Divyanshu. So both Aryan and Divyanshu have given correct answers. Health is very most important because health also adds to our skill. अगर मैं knowledgeable हूँ बट मेरे पास हेल्थ नहीं है तो मैं डेफिनेटली वर्क नहीं कर पाऊंगी। किसी दिन मेरा बहुत तेज हेडेक हो रहा है तो मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी, राइट? So this skill and productive knowledge is provided with the help of proper education and training. However, जो बेनिफिट्स एजुकेशन के सिर्फ वही हमें बेनिफिट नहीं देंगे, हेल्थ तो जरूरी है। एजुकेटेड है बट अनहेल्दी है तो वो इकोनॉमी के लिए रिसोर्स नहीं है, राइट? एजुकेटेड इंडिविजुअल रिसोर्स तभी बनेगा जब वो हेल्दी है। अगर हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है। फैमिली में कोई अनहेल्दी हो जाता है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है ना, केयर टेकिंग करनी पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अनहेल्दी पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी, उसका ध्यान रखना पड़ता है, पैम्पर करके रखना पड़ता है। तो हेल्दी एसेट, हेल्थ जो है वो सबसे जरूरी है। यहाँ एक न्यू वर्ड आपके लिए आया है, इंडिस्पेंसिबल। इसका मतलब होता है जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखें, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? मेरी पर्सनल वर्किंग लाइफ में हेल्थ क्या रोल प्ले करती है? तो मेरी पर्सनल वर्किंग लाइफ में हेल्थ मुझे एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करती है। अगर मैं हेल्दी हूँ तो ही मेरा काम टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा, और अगर मैं अनहेल्दी हूँ, बार बार छुट्टियां ले रही हूँ, तो डायरेक्टली मेरी एफिशिएंसी लोअर डाउन हो जाएगी, राइट? आपका टीचर, आप सोचिए टीचर को बार बार खांसी आ रही है, वीकनेस है, वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको उस दिन थोड़ी टॉपिक एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड ऑल्सो गिव हिम द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। एंड अनहेल्दी इंडिविजुअल इज अ लायबिलिटी टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। The health of a person is directly related to his efficiency. As compared to an unhealthy individual, a healthy person can work more efficiently and with greater productivity. अगर हेल्दी है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, राइट? तो हेल्थ उसकी प्रोडक्टिविटी में एडिशन करता है। आगे देखिए, What are the various activities undertaken in primary, secondary and tertiary? प्राइमरी में क्या क्या होता है, सेकेंडरी में क्या क्या होता है, और टर्शरी में क्या क्या होता है, ये आपको पता है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंडरी में प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी के अंदर होता है सर्विस रिलेटेड सारा काम, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ। फिर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी, non-economic are not for earning money. ये psychological satisfaction, domestic chores है, regular work है। When your mother is cooking food in the kitchen, she is performing non-economic activity. While when a person, chef is cooking food in restaurant, he is performing economic activity. फिर why are women employed in low paid work? वुमेन्स को लो पेड वर्क पे क्यों काम मिल रहा है? ये पुरानी बात है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। जब वो बढ़िया तरीके से एजुकेटेड नहीं होते हैं, स्किल्स कम होते हैं उनके पास, तो ऐसे में उनको लो पेड वर्क पे काम करना पड़ता है। सिर्फ वही वुमेन्स लो पेड वर्क पे काम करती है जहां उनको एजुकेशन और स्किल्स उनमें नहीं है। और प्लस एक डिसएडवांटेज ये है कि वुमेन मैन के कंपैरेटिवली फिजिकल वर्क कुछ कम कर सकती है। अगर एक मेल एक साथ 2 बाल्टी पानी उठा के ले जा सकता है, तो आपकी सिस्टर अगर आपके बराबर की है तो वो एक ही बाल्टी उठा पाएगी, 2 बाल्टी तो नहीं उठा पाएगी। एग्री कर रहे हो ना आप सभी? तो ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल वर्क्स होते हैं जो वुमेन मेन के कंपैरेटिवली थोड़ा कम कर पाती है, ठीक है, तो इस वजह से भी उनका पेमेंट स्किल कम होता है। Now, meaning of unemployment, simple meaning, a situation in which persons who are able to work and even who are willing to work are not getting work. जो लोग गोइंग वेजेस पे, यानी जो रनिंग वेजेस है, अभी जो वेज रेट है उस पे जो लोग काम करने की केपेबल भी हैं, काम करना चाहते भी हैं, बट काम मिल नहीं रहा है, तो उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड।
अब एन और इंडिविजुअल के बीच में गैप है, आप लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्या कह रहे हैं देखिए, एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड इफ ही और शी इज अ पार्ट of the workforce of a country and is capable and willing to work for payment but is unable to do so। यानी एक पर्सन को हम कब अनएम्प्लॉयड कहेंगे, जब वो वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट है, काम करना भी चाहता है बट उसको काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है उसके लिए। ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन स्किल वेस्ट हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स अनएम्प्लॉयड बैठा है, तो ये इकोनॉमी के लिए एक हैवी लॉस टर्म हो सकता है। आगे देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेबल थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है, इसमें शो हो रही है आप लोगों को। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन when an individual appears to be employed but it does not add to the productivity, that is the productivity is same even in his absence। जब वो काम कर नहीं पा रहा है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी आपको, थोड़ा सा ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर करके सेंड कर दूंगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, सर्टेन मंथ्स के लिए काम मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। फिर एजुकेटेड पीपल अनएम्प्लॉयड है, तो वो एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम क्यों है, एक बड़ी प्रॉब्लम क्यों है एजुकेटेड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट। पहले तो क्या आप बता सकते हैं एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड रह क्यों जाते हैं? कैन एनीवन टेल मी? Why educated people remains unemployed in the economy? रीजन है हमारा एजुकेशनल सिस्टम डिग्री ओरिएंटेड। पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैक्सिमम लोग पढ़ाई करते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अच्छे मार्क्स से कुछ नहीं होता, अच्छी नॉलेज मैटर करती है। डेफिनेटली मार्क्स तो मैटर करते हैं, बट नॉलेज इज मस्ट। आप 100 आउट ऑफ 100 ले आओ, ऑनलाइन में कोविड में बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं, बट अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो डिग्री लेके अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, इट मींस यू आर नॉट हैविंग नॉलेज। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं नॉलेज की डेफिशिएंसी की वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये इकोनॉमी की एक बिगर प्रॉब्लम क्यों है, देखिए जरा ध्यान से। क्या कह रहे हैं देखिए, if disguised unemployment is characteristics in rural area, educated unemployment is peculiar problem of urban area। यानी important problem है, major problem। This is the situation wherein a number of youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find suitable jobs। यानी 10th 12th क्लियर है, ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, फिर भी जॉब नहीं मिलती है। The education system, ये सुनिए ध्यान से, the education system is such that even after about 18 years of education, a person can be well termed as unskilled। पढ़ लिख गया है, 12th पास कर ली है, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी अनस्किल्ड है, क्योंकि सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई की है, एक्चुअल नॉलेज तो है। What does this is a large number what this does is that a large number of unskilled educated youth get churned out of educational institutions year after year, but only a fraction of them are able to find suitable job। ये कह रहे हैं हर साल बहुत सारे लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बट उनमें से कुछ ही लोगों को जॉब मिल पाती है। ठीक है, among the remaining, the some remain unemployed while other gets employed in the activities that seem inadequate as per their potential। जो बाकी के रह जाते हैं उसमें से कुछ तो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं और कुछ लोग ऐसी जगह काम करते हैं जो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सही नहीं। This in turn leads to wastage of huge amount of resources that had been spent on educated them। पढ़ाने में जो रिसोर्सेज लगाए वो वेस्ट हो जाते हैं, राइट। प्लस इससे यूथ में फ्रस्ट्रेशन भी आता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इंडियन यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे। आप अपने बड़े कजन्स को ऑब्जर्व करना और उनसे पूछना, रिव्यूज लेना, कितने लोग सक्सेसफुल है और कितने नहीं। तो जहां भी अनसक्सेसफुल है, रीजन है पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिर ये कह रहे हैं क्या आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेजर दे सकते हो? कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन एजुकेशन सिस्टम टू माइग्रेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को कम करने के लिए क्या आप कुछ सजेशन दे सकते हो? तो बिल्कुल बहुत सारे सजेशंस को मानते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जो आपको करियर ओरिएंटेड एजुकेशन देती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं,
Make education at secondary level more career oriented, which would endow individuals with not only education but also requisite skills for gaining successful employment. ऐसी एजुकेशन दो जो करियर ओरिएंटेड हो, जो अल्टीमेटली उनको उनकी वर्किंग लाइफ में हेल्पफुल हो, राइट. क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस वेयर बाय ईच इंडिविजुअल चूजेस सब्जेक्ट दैट suits his or her abilities. होता है ना, आप आगे अगले साल के बाद आप अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाएंगे. क्यों? ताकि आप अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन ले सकें और कुछ न्यू सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करें. तो ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली हो गया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई. आगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर में कौन सा रिसोर्स बेस्ट है आपको ये बताना है. तो बिल्कुल हमें पता है ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा बेस्ट है. क्यों ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा बेस्ट है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही बाकी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगी. ह्यूमन कैपिटल ही है जो बेटर यूटिलाइजेशन करेगी. इसलिए अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करवाया है और क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करवाया है. उसके अलावा सारे क्वेश्चन इसमें सीक्वेंस अलग है, आप अपनी बुक की सीक्वेंस से पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करवा दिए हैं. ये आपको लर्न करने हैं, फेयर रजिस्टर पे वर्क करना है. वर्क का पीडीएफ आज आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. ये जो पीडीएफ है ये आप सभी के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. मेक श्योर बहुत अच्छे से काम करना है. ठीक है, चलिए ये रिवीजन कंप्लीट हो गया है. एंड करते हैं आप आज की क्लास. जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करके, पहले तो पीडीएफ मुझे फॉरवर्ड कर देंगे बाय सैटरडे इवनिंग. आज तो वेडनेसडे है, सैटरडे इवनिंग तक फॉरवर्ड कर देंगे. ब्लैक पेन ब्लू पेन अच्छे से यूज करेंगे. ओके, क्लोजिंग लाइंस, अंडरलाइन सब कुछ होना चाहिए और आपका पीडीएफ मेरे पास आना चाहिए विद योर नेम. इज इट ओके? ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू.